जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, मैं अपना एक शुकराना सत्संग गुरु जी के चरणों में उनकी सेवा में देना चाहती हूँ। और मैं शुकराना देने से पहले गुरु जी का अनंत कोटि शुकराना करना चाहूँगी कि उन्होंने ब्लेसिंग्स देने का जो हम शुकराना जो उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, उसके बदले जो शुकराना देते हैं, वो शुकराने के बदले वही हम पे लौट के आता है। तो बहुत अनंतम शुकराना गुरु जी, अनंतम शुकराना। आप अपने पास तो कुछ रखते ही नहीं हो, शुकराना लेके भी आप उसको उसी को ब्लेसिंग कन्वर्ट करके और दे देते हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुकराना देने से श आज मुझे अचानक थॉट आया संगत जी कि शुकराना क्यों माँगा गुरु जी ने? शुकराना देने से कहते हैं ना नीवा होके चलो, तो शुकराना हमें नीवा होके सिखाना सिखाता है कि हम क्या हैं? हम जब लेते हैं तो शुक्रगुज़ार करते हैं। शुक्र करते हैं, शुक्र मतलब कि शुक्र है दात्या तेरा शुक्र है। नीवा होके चलते हैं, सिर झुका के चलते हैं। नीवा होके चलने से हम अभी तक की जितनी ज़िंदगी जी के आए हैं, वो ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव और उसमें जो हमने सीखें सीखी हैं, जो पाठ पढ़े हैं, जो लेसन सीखे हैं, जो ज़िंदगी ने सब कुछ दिखाया सिखाया है, वो हम भूलते नहीं हैं। जहाँ सिर ऊँचा होके अकड़ जाता है, वहाँ पे हम सब सीखी हुई बातें भूल जाते हैं। तो इसलिए शुकराना देते रहते हैं ताकि घमंड ना आ पाए किसी भी बात का। और जो हमारे अंदर मैं होती है ना, वो मैं ना आ पाए, इसलिए हम शुकराना देते हैं कि जितना नीमा रहेंगे, उतना ज़्यादा ज़मीन से जुड़ के रहेंगे, जितना ज़मीन से जुड़ के रहेंगे, उतना सँभल के चलेंगे, गिरेंगे नहीं। गुरुजी हमेशा कहते थे, "नीवां होके चलो, ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।" ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਾਥੋਂ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ किसी का कोई जवाब होवेगा, क्योंकि ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਆਂਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸੇਵਾ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਾ 2 ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਪੇ ਇਤਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੋਮਲ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲਿੰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਐਨਰਜੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਰਮ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਰਮ ਹੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਕਰਮ ਕਸ਼ਟ ਆਏਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰਨ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾਂਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨਾ ਬੇਚਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੌਲੀ, 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 ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਉਹ ਲਾਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਤੀ ਕਿ 100% ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੇ, ਦਵਾਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ-ਕਦੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਲੜ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਲਟਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਉਹ ਝੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਝੇਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੇਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੇਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 5% ਆਣੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਵ ਆ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਧੇ ਖੜੇ ਰਵੇਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਚਿੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਬਾਜ਼ ਲੜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਵਾਂ। ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਮ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਬਾਜ਼ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਛਾਂ 'ਚ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹਾੜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਿੜੀਆਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਵਤਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਕੱਟੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੀ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਮੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿਵਯ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਪਾਰ ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਸ਼ਟ ਆਏ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਉਪਾਏ ਕਰਕੇ, ਪਖੰਡ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ 'ਤੇ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੰਮਾ ਹੁਆ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਖੁਦ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਬਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, 12 ਸਾਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, 12 ਬਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ, ਚੌਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ,
ਸਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਕੀ ਪੈ ਜਾਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੌਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇੱਕ ਚੌਕੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਚੌਕੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੀਂ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੋਂ ਹੀ ਦੇਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तेरे को दे दिया, फिर क्या लागे मेरा। ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣੇ, ਆ ਕੇ ਹੀ ਬਣੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਥਾ ਜੋ ਤੇਰਾ ਖੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹੀ ਕਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਓ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਲਾ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਪਕੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਓ। ਸਾਡਾ ਹਾਰਟ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਸਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੂਰਖ, ਅਗਿਆਨੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਲਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज 11 तारीख है, मैं आपकी बेटी इटली से बोल रही हूँ। आपको शुक्राने का सत्संग करने के लिए मैं हमेशा शुक्राना गुरु जी के चैनल पर ही अपना सत्संग करती हूँ। मैं अपना सत्संग कोमल दीदी के चैनल पर ही करती हूँ। मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना बाबा, शुक्राना जी, मेरा शुक्राने का सत्संग है। आज सारा दिन आप बहुत अच्छा निकला, घर से बाहर ही बस घूमती रही अपनी बेटी के साथ। बाबा, आपने बताया था कि तू थकना मत, हिम्मत कर और अपने घर के काम निपटा। बाबा, आपके आशीर्वाद से मैं आज जैसे इंडिया में 2-3 गाँव में जाते हैं बाबा, ऐसे ही मुझे डॉक्यूमेंट्स के कारण जाना पड़ा। ट्रेन में जब गए, बड़ी हिम्मत करके बाबा भागकर ट्रेन मिली। बाबा, सामने ट्रेन आ गई। मैंने बोला बाबा हम चढ़ जाएँ बस। बाबा, ऐसे लग रहा था कि बस जैसे आपने ही इंजन को रोक रखा है। वहाँ पर पैर रखते ही ट्रेन चल पड़ी। शुक्राना मेरे बाबा, अपनी कृपा अपनी बेटी पर ऐसे ही बनाकर रखना। बाबा, आपने वहाँ पर भी जाकर मिनट में ही मेरा काम करवाया। उसी ट्रेन में मैं वापस अपने बेटे के साथ आ गई। शुक्राना, शुक्राना। बस बाबा, मैं घर से कहकर ही चली थी कि बाबा आप अंग संग रहना। बाबा, जल्दी से सारे काम निपटा दिया। उसके बाद बाबा, मैं उतर कर एक और काम के लिए जाना था अपने ही जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ। वहाँ से 10-15 मिनट का रास्ता है बाबा घर से। वो भी काम निपटा के शाम को वापस घर आए बाबा। सभी काम हो गए बाबा। मम्मी के बुलवाना है सासू माँ को, इसलिए बाबा अभी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है, इधर-उधर जाना पड़ रहा है बाबा। साथ देना, ये काम सिरे चढ़ जाए, क्योंकि मम्मा का आगे भी काम बनाया था, बना नहीं। इंडिया से उनको वीज़ा नहीं मिला, पक्के पेपर बनवा रहे हैं बाबा, आप साथ देना।
11 तारीख आज के दिन मैंने वो शुरू किया है बाबा। आपने आज भी मैसेज सुनवाया कि तू घबरा मत, मैं जब तेरे साथ हूँ तो तू डरती क्यों है? तू एक कदम बढ़ा, मैं 100 कदम तेरे साथ हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना। बाबा बच्चों के टेस्ट भी बहुत अच्छे हो रहे हैं आपकी कृपा से। बाबा बच्चों पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाकर रखना। बड़े बेटे का बहुत सुंदर बाबा टेस्ट में मार्क्स आए 100 में से 80 बाबा। बड़ी क्लासों में इतने आने पॉसिबल नहीं होते क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा मार्क्स देते नहीं है। 85 सबसे ज़्यादा होते हैं बाबा। शुक्राना ऐसे ही कृपा बनाकर रखना बाबा। एक सत्संग में आपने सुनवाया कि बेटा गलत रास्ते पे जा रहा है, उसकी संगत गलत है। बाबा आप ही उस पर रक्षा करना उसकी। मैंने आपको बोलना है क्योंकि आपको पता है बच्चे बेटों को बोलो बच्चों को बोलो तो बाबा बच्चे सुनते नहीं है। आप ही बाबा उस पर अपनी कृपा बनाकर रखना। जैसे आपने बोला कि मैं उसके हमेशा उसके साथ हूँ बाबा। उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए, खुश था बाबा। और कृपा करनी बाबा, बस हम चाहते हैं कि क्लास में वो टॉप करें बाबा। जैसे आपने बोला कि उस पे बस ध्यान दे बाबा। मैं उस पर अपनी पूरा ध्यान देती हूँ बाबा। बाकी जो भी है आपने देखना है बाबा। मैंने आप पर ही दोनों बेटों की जिम्मेवारी सौंपी है बाबा। आपकी बेटी के दामन में कोई भी दाग नहीं लगना चाहिए बाबा। बच्चों पर अपनी कृपा बनाकर रखना। छोटे बेटे का भी पेपर आज हुआ है बाबा। अच्छे मार्क्स आ जाए, वो अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाए। बोल तो रहा है कि बहुत अच्छा पेपर हुआ है। बाकी बाबा आप खुद देख लेना। शुक्राना मेरे बाबा। पति अंकल पर भी अपनी कृपा करना। बहुत अच्छा काम दिलवाने के लिए बाबा शुक्राना। बहुत अच्छी पे लाने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। हर पल हर श्वास से शुक्राना बाबा। भाई पर भी अपनी कृपा करना बाबा। बाबा आज बार बार आ रहा है 11:11 पर मांगने के लिए बाबा। अगर आपने चाहा तो जरूर उस टाइम भी मैं पाठ करूंगी बाबा। जैसे आप चाहोगे बाबा। आपकी कृपा से बहुत अच्छा टाइम चल रहा है बाबा। आप अपनी बेटी को कुछ मांगने की नौबत नहीं पड़ने देते, पहले ही सब कुछ दे देते हो। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। अपनी बेटी पर ऐसे ही कृपा बनाकर रखना। मेरी पूरी संगत पर जो आपने मुझे इतने अच्छे भाई बहन दिए उन सब पर भी अपनी कृपा ऐसे ही बनाकर रखना बाबा। आपने सत्संग में भी बताया कि तू अपने लिए कुछ नहीं मांगती, तुम दूसरों के लिए मांगती हो ना, इसीलिए मैं तेरा सबसे पहले काम कर देता हूँ। शुक्राना मेरे बाबा। आप तो जानते हो कि बाबा मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन लोग फिर भी मेरे को जीने नहीं देते। चाहे ससुराल वाले ही हो, चाहे यहाँ पर आस पड़ोस वाले हो बाबा। मुझे पता नहीं क्यों लोग इतने जलते हैं बाबा। आप अपनी कृपा बनाकर रखना बाबा। दो गाड़ी होने के कारण लोग एक दो लोगों ने तो मेरे मुंह पर भी बोल दिया कि आप लोगों ने दो गाड़ी क्यों रखी है बाबा। बाबा ऐसे ही बोला। एक गाड़ी बिल्कुल ही खराब होगी, अब उसे फेंकना पड़ेगा बाबा। लोगों की इतनी बुरी नजर है। अब आपके मैसेज आने शुरू हो गया कि तेरे को और एक नई गाड़ी मैंने ब्लेस की। दिवाली से मैसेज आ रहे हैं बाबा। शुक्राना जब आप चाहोगे उसका टाइम आएगा वो भी घर पर आएगी आपकी कृपा से। शुक्राना बाबा इतनी अच्छे मैसेज, इतना अच्छा हौसला देने के लिए, इतनी अच्छी लाइफ बिताने के लिए बाबा। शुक्राना, शुक्राना भाई की ओर से शुक्राना, भाई बहन मेरी बहनों की ओर से शुक्राना, मेरे डैडी की ओर से शुक्राना, पति अंकल की ओर से शुक्राना, बच्चों की ओर से शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे मालिक। यहीं पे मैं सत्संग की समाप्ति करती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। बाबा कोमल दीदी को खूब खुशियाँ देना, उनके घर में खूब बरकत डालना बाबा। यहीं पे मैं सत्संग की समाप्ति करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं मुंबई से बोल रही हूँ श्वेता। गुरु जी का शुक्राना करने के लिए मैं इंतजाब करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय संगत जी। गुरु जी कहते हैं शुक्राना कर पुत्र, तेरे जल्दी जल्दी काम बन जाएंगे। गुरु जी मैं रोज तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी, पर काम कुछ बन नहीं रहे अभी तक। अब तक कुछ कहाँ मैं कम पड़ रही हूँ मुझे नहीं पता गुरु जी, पर काम तो कुछ नहीं बढ़ रहे। ये लोग मारण क्रिया वगैरह वापस समाओं से आ गए। वापस वो लोग ने बीच में खलल डालना शुरू कर दिया है। गुरु जी बोलते हैं
तेरे वापस बीच में उन लोग ने तकलीफ देना शुरू कर दिया है, वापस तेरे काम रोकने के प्रयत्न चालू हो गए हैं। तेरे काम के बीच में वो लोग मतलब फाइनेंस के, तेरे सक्सेस के इसमें वो लोग ने वापस ये खलल डालना शुरू कर दिया है, तो इसलिए तेरे काम रुक रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आप कितना दिन से मैं ये सब सहन करूं मुझे नहीं पता गुरुजी। ये सहन करते करते अब मैं तो थक चुकी हूँ गुरुजी। इनकी आप होते हुए भी ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, बार बार ये लोग क्रिया करते। 15 दिन अमावस्या के बाद 15 दिन पूर्णिमा, पूर्णिमा का काम बंद नहीं करते, उतने में अमावस्या आ जाती है, बस दूसरा चालू कर देते। यही चालू है चक्र, ऐसे ही चालू है कब से, इतने सालों से मैं झेल रही हूँ गुरुजी। बस अब मुझसे नहीं हो रहा है गुरुजी, मुझसे अब नहीं हो रहा है। मैं थक गई हूँ इन सब इन लोगों से। इनकी वजह से मेरे काम बार बार रुक रहे हैं, बार बार मेरे सक्सेस में रोक लगा देते हैं, बार बार काम होने से पहले वो लोग अड़चने डाल देते हैं, रिचुअल कर देते हैं, बुरे बुरे ये कर देते हैं। तो मैं कितने दिन ये सब सहे करूँ गुरुजी, कुछ तो करिए गुरुजी, जल्दी जल्दी। आप तो बोल रहे तेरे सब निकाल दिए मैंने ब्लैक मैजिक, फिर भी वो लोग वापस वापस कर रहे हैं, वापस वापस। मतलब जब भी आप कुछ करने मेरे लिए जाते हो, वापस वो लोग अटकलें डाल देते हैं और वापस वो रोक देते हैं। मतलब बुराई पे अच्छाई की ये होती है, तो इधर अच्छाई पे बुराई की विजय हो रही है। ये सब कब तक रहेगा गुरुजी? थक चुकी हूँ और मैं, मुझसे नहीं हो रहा है गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं शुक्राना कर पुत्र, बस तो बाकी कुछ सोच मत, शुक्राना कर, बाकी सब मेरे मुझ पे छोड़ दे। तो सब आप पे ही छोड़ा है गुरुजी, शुक्राना करती हूँ रोज के रोज, आपके कहने के अनुसार रोज के रोज शुक्राना करती हूँ। सब चीजों को आप पे छोड़ा है, लेकिन कितना सहन करने का गुरुजी। लोग कर्जे वाले लोग बहुत सता रहे गुरुजी, पता नहीं मुझसे नहीं हो रहा है ये सब। अभी गुरुजी बोल रहे हैं अभी लास्ट का है ना, तो ऐसे ही होगा, थोड़ा तकलीफ लास्ट की है, तो थोड़ी तकलीफ होगी तुझे, मैं हूं ना तेरे साथ। तो गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी कितना किसी को सब्र करवा सकते हैं, कितने सालों से किसी को कितना रोक सकते हैं। उनके भी कोई अड़चने आती है तो वो बस वैसे ही इधर आके चिल्लाते हैं। तो बस गुरुजी मुझे नहीं पता कुछ भी, अब मैंने आपके चरणों में छोड़ दिया। मुझे अभी मारो या तारो, ऐसी भूमिका मेरी है कि मैं अभी नहीं कर सकती। बस ऐसी कंडीशन मेरी हो गई है, मुझसे अब कुछ नहीं होगा। जो करना है आपको जल्दी से जल्दी करना है, मुझे अभी नहीं समझता। या तो मुझे मारो या तो मुझे तारो, बस ऐसी हालत मेरी है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आप बोलते हैं रोज इतने अच्छे ब्लेसिंग देते हैं, होगा होगा होगा, लेकिन जब होने के आप मुझे अच्छे अच्छे पॉजिटिव ब्लेसिंग देते हैं, तभी वो लोग कुछ ना कुछ कर देते हैं और खराब कर देते हैं। बस मुझसे अभी थक चुकी हूँ ये रोज का रोज इनका ये कर सुन के। मुझे नहीं अभी चाहिए, सब सुनना नहीं है, बस मुझे आपकी ब्लेसिंग चाहिए, पॉजिटिव ब्लेसिंग चाहिए गुरुजी। बस अभी मुझे फाइनल और पॉजिटिव चाहिए गुरुजी। बस मैं अभी थक चुकी हूँ इन सबसे। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं बहुत थक गई हूँ अभी गुरुजी, मुझसे नहीं सह सकती अभी मैं। मेरी भी कुछ लिमिट है, सब हर चीज सहन करने की, मुझसे नहीं हो रहा है गुरुजी। आपके चरणों में है हूँ करके मैं अभी तक जिंदा हूँ, नहीं तो पता नहीं क्या होता। तस्वीर लटक रही होती इतने में। ऐसी कंडीशन है मेरी गुरुजी। खा पी के तो ठीक है, खाना पीना तो ठीक से है, जो सता रहे हैं ना उसका क्या करूं। मतलब क्या बोलते हैं, इधर से मारण क्रिया वाले लोग सताते हैं, इधर से कर्जे वाले लोग सताते हैं, ऐसी कंडीशन मेरी हो गई है। तो मुझसे नहीं हो रहा है गुरुजी, अभी आप बचा लो मुझे, बस अपनी बेटी को बचा लो गुरुजी इन सब से, और बाहर निकालो इससे। आखिरी दिन का आखिरी ये है मेरा, तो मुझसे अब नहीं सहन होता।
शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, कोटि-कोटि शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत-बहुत ब्लेसिंग देने का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत।